ये हैं क्या और how you can prepare yourself. English essay. So basically, English essay or any type of essay is an attempt. It is an attempt to convince somebody about a particular idea, about a particular phenomenon. Either you can explain a phenomenon, that describe a process. लोगों को समझाने के लिए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बयान करने के लिए, अपना आइडिया बयान करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए you ought to write an essay. वो essay हमेशा cohesive होता है, ठीक है. It is a running text, it is well articulated, divided into paragraphs, it has a consistent idea जिसके ऊपर ये चलता है. It is cohesive, इसमें रब्त होता है, basically a consistent idea चल रहा होता है. It's organized, you know exactly कि आपने किस पॉइंट के बाद कौन सा पॉइंट डिस्कस करना है, how you are moving towards the conclusion. It is argumentative, obviously, because critical analysis is very important, so you have to give a proper argument and then to defend it. Then you have to provide your own analysis. आपका जो opinion है वो based on किस analysis पे है, किस तकनीक से आपने वो analysis किया है, कौन सी theories का आप जिक्र कर रहे हैं, क्या practicality देखी है, क्या examples हैं, क्या case studies हैं. And then finally you are able to convince somebody, be it the examiner, be it the reader, कि ऐसे के अंदर जिस आइडिया के ऊपर, जिस टॉपिक के ऊपर मुझे कहा गया था लिखने के लिए, मैं लोगों को कन्विंस कर भी सका हूँ या नहीं कर सका. So the English essay, if you see this pyramid, basically it's a pyramid, और इस pyramid की base जो है, that is economy with the words. It's actually vocabulary. So vocabulary, ordinary vocabulary English language के लिए बहुत ज़रूरी है. And when you're going to write about something, you should have proper verbs, proper action verbs. You should have proper adjectives in order to beautify, in order to characterize, in order to describe, in order to quantify. You should be knowing about the adverbs, you should be knowing about the punctuation, जो grammar की जितनी tricks हैं. You should be knowing that वो उसमें सबसे essential element है is your vocabulary. And vocabulary जब articulate होती है, vocabulary जब increase होती है, तो it becomes effective vocabulary. So to the point, बात करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके पास proper अल्फाज होने चाहिए. दूसरी important चीज़, अपने आइडिया को एक्सप्लेन करने के लिए आपके पास उस आइडिया से रिलेटेड अच्छे अल्फाज का होना ज़रूरी है. So ये जो अल्फाज हैं, ये कहाँ से आते हैं, इसके क्या एग्जांपल्स हैं? There are very easy exercises which you need to perform on the daily basis, which actually improve your vocabulary. Similarly, when we talk about argumentative nature of an essay, कि उस ऐसे के अंदर आपने अपना आर्गुमेंट प्रेजेंट किस तरह से किया है, किस किस्म की लैंग्वेज है, किस तरह से आप इन अ सटल वे और इन अ डिप्लोमेटिक वे और इन अ प्रॉपर वे और इन एनालिटिकल वे, जैसे भी आपने अपना आर्गुमेंट प्रेजेंट करना है, उसकी क्या स्पेस होनी चाहिए, क्या जगह होनी चाहिए, हाउ यू कैन present all of this divided into paragraphs. Then argumentative के अंदर the most important thing is should have strong argument. वो एक mediocre argument नहीं होना चाहिए, वो एक weak argument नहीं होना चाहिए. So if you refer to the FPSC examiner reports CSS के अंदर, so they'll tell you about three things basically. The first thing is why candidates fail in English essay. हर साल के मुख्तलिफ रिपोर्ट्स होती हैं, पर जो तीन चीज़ें कॉमन हैं उसमें पहली चीज़ ये है कि candidates presented weak arguments. दूसरी important चीज़, candidates could not justify arguments. ठीक. तीसरी important चीज़, that candidate forgot to put full stop. So grammar से related, a sentence ends at a full stop. So when you actually forget to put a full stop, बात ही खत्म हो गई, आपने grammatical mistake जो है वो की है. और चूंकि हमारी जो राइटिंग हैबिट्स हैं वो इस किस्म की हैं
कि बहुत सी ऐसी गलतियां हैं जो हम अननोइंगली कर लेते हैं लिखते हुए। जब आप पेपर अटेम्प्ट करते हो, इंग्लिश एसे के अंदर बैठते हो, वो अननोइंगली जो इनवॉलेंट्री आपके स्टाइल के, रिटन स्टाइल के अंदर जो गलतियां हैं छोटी छोटी, वो आहिस्ता आहिस्ता आपके नंबर काटती रहती हैं, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को ज्यादा कॉम्प्लेक्स करती जाती हैं। वी नेवर नो, एंड एट द एंड जो हमारा ओवरऑल स्कोर है वो इतना कम हो जाता है, एक्सेप्टेड मार्क्स इतने कम होते हैं कि वी आर अनएबल टू attain the required marks. फिर it should be English essay के अंदर जो आपका कंटेंट है वो प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, एक आउटलाइन की फॉर्म में होना चाहिए। यू शुड नोइंग, द एग्जामिनर शुड बी नोइंग, और आपको पता होना चाहिए कि आप क्या चीज किस तरह से लिख रहे हैं, किस आर्ग्यूमेंट के लिए आपको किस किस्म का कंटेंट देना है, कौन से फैक्ट्स एंड फिगर्स देने हैं, कौन सी केस स्टडीज या एग्जांपल्स प्रोवाइड करनी है, और फिर उनकी प्रॉपर रेफरेंसिंग होनी चाहिए। आपने किसी रिपोर्ट से पढ़ा है, आपने किसी बुक से पढ़ा है, उस बुक के ऑथर के क्या ओपिनियन है उस चीज के बारे में, हाउ यू सी दैट, आपने अपने एनालिसिस के अंदर कौन से स्पेसिफिक पोर्शन है जो उससे लिए। ये सारी की सारी चीजें राइट है, इकोनॉमी विद द वर्ड से लेके टू द रेफरेंसिंग, दे हेल्प इन फॉर्मिंग अ कंसिस्टेंट आइडिया अबाउट एनीथिंग। सो एक्चुअली ये जो कंसिस्टेंट आइडिया है ये आपका गोल है, ठीक है, ये आपका वो गोल है जिसमें ये छोटे छोटे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ये सारे के सारे इसमें इंक्लूडेड है। So, ये ऑब्जेक्टिव्स जैसा आप चेक करते जाते हो, इफ your economy with the words is good, ठीक है, it can be articulated, then it is an effective, you have an effective vocabulary, so you're argumentative in nature, you can present your critical analysis, and you are able to build a strong argument, and then you're able to defend it. Then you are submitting your opinion in an organized way, फिर उसकी आपने proper referencing की है, it becomes a consistent idea. वो consistent idea वो है जो कि अगर हम पिछली इसमें देखें, essay is an attempt to convince, so essay is an attempt to convince के अंदर this consistent idea is there which helps you in convincing the examiner that you have done everything properly, now you deserve the proper passing marks. If your idea is consistent, if ये thought process और ये prerequisite पीछे से बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आपकी practice इन पे अच्छी है, then you'll get a consistent idea, and that consistent idea will help you in good expression. वो expression जब paper के ऊपर आएगा, because let me tell you one thing very clearly, that your introduction to the examiner, your introduction to anybody is the paper जो आपने अटेम्प्ट किया, ठीक है। सो उसके ऊपर आपकी तस्वीर नहीं है, आपका नाम नहीं है, आपकी जेंडर नहीं है, आपकी एजुकेशन नहीं है, आपकी एज नहीं है, आपका सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड नहीं है, उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ आपकी राइटिंग है, जिसमें आपका एक्सप्रेशन है, जिसमें आपने एक आइडिया, एक टॉपिक जो चूज किया है उसके ऊपर एसे लिख रहे हैं और उसको डिफेंड कर रहे हैं। सो वो एक्सप्रेशन जितना स्ट्रांग होगा आपके पास, उतना ही बेहतरीन किस्म का रनिंग टेक्स्ट आएगा। यू विल ऑटोमेटिकली गेट अ कोहेसिव एसे, एक ऐसा एसे विच प्रेजेंट अ कंसिस्टेंट आइडिया, जिसमें एक मुकम्मल रब्त है जो कि रिक्वायरमेंट है सीएसएस की, ठीक है। सो वन बाय वन, by practice, one by one, by doing exercises, one by one, by doing it properly, आप ये चीजें अचीव करते जाते हैं, अपना टारगेट बनाते हैं पर वीक के हिसाब से, इस दफा मैंने ये करना है, अब मैंने ये करना है, अब मैंने इसके ऊपर फोकस करना है, एंड देन एट द एंड यू ट्राई टू अटेम्प्ट अ कंप्लीट एसे, और वो एसे जो है इट इज नियर टू परफेक्ट। टाइप्स ऑफ एसे, सो सीएसएस के अंदर, वैसे एकेडमिक एसेस के अंदर बहुत सी टाइप्स हैं, बट सीएसएस के अंदर जो 4 टाइप्स बार बार देखी गई हैं, जो कि एग्जामिनर आपसे टॉपिक्स डिस्कस करते हैं उनकी बेस के ऊपर है। द फर्स्ट वन इज डिस्कोर्स। In an essay where you have to present a discourse, it is basically about
to convince the reader about some point of view, जो भी point of view है आपका किसी ideology के बारे में, किसी philosophy के बारे में, you want to talk about the politics, you want to talk about political stability, you want to talk about economics or economic stability, उन चीज़ों को कन्विंस करने के लिए। एंड सेकंड वन, हेलो सर। जी जी, यहाँ पे जो आप डिस्कोर्स का कह रहे हैं सम पॉइंट ऑफ व्यू, ये अपना है या फिर उसकी तरफ से हमने उसको आंसर करना है? यस, सीएसएस में जब आप अटेम्प्ट कर रहे होंगे तो ऑलरेडी आपको एक टॉपिक दिया जाएगा फ्रॉम अ वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स, दैट सब्जेक्ट जो होगा वो आपको दिया जाएगा और उसमें आपने सेलेक्ट करना है एंड देन यू हैव टू राइट एन एसे। वो पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? इफ यू थिंक दैट द रीजंस फॉर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन पाकिस्तान आर सच एंड सच, सो यू नीड टू कन्विंस द एग्जामिनर कि ये जो रीजंस मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ये वो रीजंस हैं जिनकी वजह से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो रही है पाकिस्तान के अंदर। So, ये पॉइंट ऑफ व्यू है, दैट इज बेसिकली योर एनालिसिस। सेकंड, डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव ऐसे फोकसेस ऑन द डिटेल, बेसिकली जो प्रोसेसेस होते हैं उनको आप डिस्क्राइब किस तरह से करते हैं, ये उसके बारे में है ज़्यादातर। देन इट्स अबाउट एक्सपोजिटरी स्टाइल, उसमें एक्सप्लेनिंग अ गिवन प्रोसेस। देन इज नैरेटिव, जिसमें आप एक स्टोरी बताते हैं और इंफॉर्मेशन देते हैं अबाउट अ पर्टिकुलर टॉपिक। सो ये 4 स्टाइल्स हैं, टाइप्स ऑफ ऐसे हैं जो कि बार बार आ रहे हैं सीएसएस के अंदर, एंड यू हैव टू फॉलो। उसमें आइडेंटिफाई करना प्रॉपर्ली, द ट्रिक देयर इज कि आपको जो भी टॉपिक दिया गया है उसमें आपने आइडेंटिफाई की उसकी टाइप, देन यू गो फॉर दैट। ऐसे में सीएसएस जो है उसको स्टेप फॉलो करने के लिए यू शुड बी नोइंग दैट इट इज द फर्स्ट पेपर, और पहला पेपर है जिसके 100 मार्क्स हैं, और 100 मार्क्स के बाद अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू हैव टू राइट 2500 to 3000 वर्ड्स। सो उन वर्ड्स के अंदर उन वर्ड्स को प्रॉपरली आपने जो है सॉरी उन टॉपिक्स को आपने प्रॉपरली अटेम्प्ट करना है। व्हाट आर द स्टेप्स टू फॉलो? identify the type of the essay, then develop a thesis statement about it, organize an outline, and then you move towards the essay writing. And the most important step at the end is revision, कि आपने जो कुछ भी लिखा है उसको प्रॉपरली आपको रिवाइज करना है उन 3 चीज़ों की लाइट में, क्या नॉलेज बेस, आर्टिकुलेशन एंड ट्रीटमेंट स्टाइल की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपने पूरी की हैं या नहीं की, ग्रामेटिकल कोई मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा नहीं है, कोई बड़ी नहीं है, you can find a consistent idea within your essay। ये सारी चीज़ों की रिवीजन बहुत ज़रूरी है। The structure of an essay जो कि CSS में आपके पास आएगा, that includes a thesis statement. In our next lecture we will be talking about thesis statements and how you can develop good thesis statements, how you can develop effective outlines, और फिर we'll move towards the body of the essay। Body of the essay में paragraphing किस तरह से की जाती है, introduction की क्या requirements हैं, और आप किस तरह से एक अच्छा introduction का paragraph बना सकते हैं, and then how you can continue writing, and at the end आपने conclusion किस तरह से प्रोवाइड करना है किसी भी टॉपिक के ऊपर। सो ये एक बेसिक गाइडलाइन है जिसकी कुछ प्रैक्टिसेस एंड एक्सरसाइजेस हैं which will be followed. So before moving to the tips, let me ask you people, so if there is any question, अभी तक की जो हमारी थोड़ी सी कन्वर्सेशन हुई है इसके बारे में कोई भी जो ये प्रेजेंटेशन थी इससे रिलेटेड, सीएसएस इंग्लिश एसे से रिलेटेड आप लोगों की क्या एक्सपेक्टेशंस? आई वांट यू पीपल अगर वन बाय वन इफ यू कैन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, डिस्क्रिप्टिव ऐसे के बारे में थोड़ा सा और बता दें प्लीज। Okay, so if I can hear you correctly, you're asking about the descriptive
वन बाय वन अगर हम ले लें क्वेश्चन तो दैट वुड बी बेटर। ठीक है, इन विच यू हैव टू डिस्क्राइब बेसिकली आपने सील से एक चीज के बारे में बयान करना है। इफ यू हैव बीन आस्क्ड अबाउट करप्शन इन पाकिस्तान, देन यू नीड टू describe the whole corruption basically के अंदर उसकी causes क्या हैं, ठीक है, और ये सोसाइटी को इफेक्ट किस तरह से कर रही है, आपकी पॉलिटिक्स को, आपकी इकोनॉमिक्स को किस तरह से इफेक्ट कर रही है, और एट द एंड देन इसका कंट्रोल क्या है पाकिस्तान के अंदर। वो कंट्रोल का जो प्रोसेस है उसको आपने एक तरह से डिस्क्राइब करना है कंप्लीट तरीके से कि आपके पास लीगल फ्रेमवर्क क्या है, नैप का ऑर्डिनेंस है, इसी तरह इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क क्या है, नैप काम कर रही है, FIA उसके साथ काम करती है, एंटी करप्शन ब्यूरोज हैं, ठीक है, इसी तरह वेरियस टायर्स ऑफ जुडिशरी हैं जो इनको देखते हैं। सो ये सारे के सारे एक प्रोसेस को डिस्क्राइब करना। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर यस सर काइंडली मेरा एक क्वेश्चन है कि आप बता सकते हैं कि ऐसे हार्डली कितने वर्ड्स पर मतलब कंसिस्ट करना चाहिए, यानी इसमें वर्डिंग जरूरी है कि भाई इतने लेटर्स इतने वर्ड्स मौजूद हों, जिस तरह समटाइम्स क्वेश्चन पेपर्स में ऐसा आता है कि आपने हार्डली इतने वर्ड्स का ऐसे करना है, तो क्या इसमें जरूरी होता है? अच्छा, इसमें अब दो चीजें, किसी भी एग्जामिनेशन के लिए आप जाते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर कि जो भी आपको इंस्ट्रक्शन दी जा रही है उसको फॉलो किया जाए। इन CSS 2500 to 3000 बिल किसने देना है, पहले ही पैसे नहीं है। अच्छा, 2500 to 3500 वर्ड्स जो है, ये जावा अनइंस्टॉल कर दिया मैंने। ठीक है, 3000, सॉरी ये इंटरप्शन बार बार आ रही है, सो आई नीड टू म्यूट देम, सॉरी। अच्छा, सो जो अल्फाज 2500 to 3500 वर्ड्स की एक लिमिट आपको दी गई है कि इनके अंदर दे आर एक्सपेक्टिंग यू टू राइट एन एसे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो मिनिमम उन्होंने रिक्वायरमेंट दी है वो अल्फाज पूरे करें, क्योंकि ये इंस्ट्रक्शन बिकम्स अ रिक्वायरमेंट ऑफ द एसे। सो इस चीज़ के ऊपर कभी भी बहस में ना पड़ें कि अगर मैं 1000 वर्ड्स लिख लूँगा, अगर मैं 1500 वर्ड्स लिख लूँगी, अगर मैं 2000 वर्ड्स लिख लूँगी तो मैं पास हो जाऊँगी या नहीं हो जाऊँगी। Obviously depends upon the quality जो ऐसे आपने किया है, but प्रॉपरली ऐसे अटेम्प्ट करने का तरीकाकार भी यही है कि जो उनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो वर्ड्स आपने पूरे करने। सर काइंडली मेरा क्वेश्चन ये है कि इंग्लिश ऐसे में हम डिफिकल्ट वर्ड यूज करें या सिंपल इंग्लिश यूज करें, कि मतलब सिंपल ये समझ आ जाए क्लियर, या जरूरी है कि हम हार्ड मतलब डिफिकल्ट वर्ड यूज करें? अच्छा, एक चीज जो मैंने जिक्र की थी दैट इज इकोनॉमी विद द वर्ड्स, और इकोनॉमी विद द वर्ड्स में डिफिकल्ट वर्ड्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रॉपर वर्ड्स का यूज करना, जिस लफ्ज की जरूरत है विच इज एक्चुअली नीडेड देयर, जो कि आपके मायने को बयान करता है। लोग अक्सर कोशिश ये करते हैं कि बहुत मुश्किल वो याद कर लेते हैं और उनको जुमलों में इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। हाउएवर होता ये है कि नॉट नोइंगली वो उसका गलत इस्तेमाल कर जाते हैं। सो अपने जुमलों को जो ऐसे के अंदर आपने सेंटेंसेस लिखने हैं, कीप इट सिंपल, ठीक है, आपकी ग्रामर जो है वो ठीक होनी चाहिए। सिंपल सेंटेंस से स्टार्ट करें, सिंपल सेंटेंस और प्रॉपर वर्ब्स हों, उसके अंदर प्रॉपर वर्ड्स हों जो कि आपके मायने को बयान करें। नो नीड टू राइट वो जो बहुत मुश्किल किस्म की वोकैबुलरी होती है, ठीक है। सो नेक्स्ट प्लीज। सर ये ऐसे में हेडिंग्स लिखना जरूरी है कि ये पूछना। Okay, so two people were asking the questions. First I got is कि ऐसे में heading जरूरी है, and second one वो voice distortion की वजह से I could not hear. So let me answer this. ऐसे के अंदर headings और फिर उसके बाद हम second जाएंगे। There are two things, do's and don't do in the essay and do nots in the essay. So जो do nots in the essay हैं उनमें पहली चीज है essay के अंदर आपने heading नहीं देनी। Essay is a running text. राइट फ्रॉम इंट्रोडक्शन की पहली लाइन से, पैराग्राफ की पहली लाइन से कंक्लूजन की आखिरी लाइन तक ये एक रनिंग टेक्स्ट में आ रहा है, इक्वली डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ्स है। इसके अंदर कोई हेडिंग्स नहीं आएंगी। सो ऐसे में हेडिंग्स नहीं होनी चाहिए।
सर क्या आउटलाइन जरूरी होती है ऐसे में? Then again, examiner आपको instruction देता है. Sometimes they say that draw an outline and write an essay, and sometimes they say that write an essay. In any case, हमेशा candidates को हम ये कहते हैं कि जो outline है वो आपके अपने लिए बेहतर है, because it provides you proper guidance कि इस चीज के बारे में, इस idea के बारे में बिल्कुल कुछ ऐसे बंदे भी हैं जो बगैर आउटलाइन लिखे पास हुए